بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے لہو سے لکھی گئی ہے وہ داستان جس کا عنوان ہے پاکستان۔ وطن عزیز کے 75ویں یوم آزادی پر میں تحریک آزادی کے ان گنت جانثاروں کو خراج عقیدت اور پوری دنیا میں آباد ہر پاکستانی کو مبارک پیش کرتا ہوں، مگر آج محض ایک مبارکباد کافی نہیں۔ یقیناً ہم ہر سال بڑی دھوم دھام اور خوشی سے یوم آزادی مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم قائد مناتے ہیں، یوم اقبال مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 75 برس میں ہم نے ان دنوں کو محض منایا ہے، مگر ان کے اصل مقاصد کو اپنایا نہیں۔ پاکستان کو ایسا نہیں بنایا جسے دیکھ کر خود ہمارا دل یہ گواہی دے کہ قائد اور لاکھوں شہداء کی روحیں مطمئن اور آسودہ ہوں گی۔ اسی لیے یوم آزادی کے موقع پر میرا دل مسرور بھی ہے اور بے چین بھی۔ پیارے ہم وطنوں، آج ہمیں کھلے دل سے اس سچائی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں، اپنی نئی نسل کو وہ سب کچھ نہیں دے سکے جس کے وہ اصل میں حقدار ہیں۔ وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے بے پایاں رحمت رہی ہے، جسے ہر نعمت سے نوازا گیا ہے، جس کے پاس رہنمائی کے لیے حضرت قائد اعظم کا عمل اور علامہ اقبال کی فکر موجود ہے، پھر وہ کیوں منزل کی تلاش میں بھٹک رہی ہے؟ ہم ان بحرانوں سے کیوں دوچار ہوئے جن میں سب سے بڑھ کر معاشی بحران ہے؟ مگر پہلے اس جذباتی بحران کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ یہ بحران خودی، خودداری، خود اعتمادی پر ہمارے یقین کا متزلزل ہونا ہے، جس کے اثرات آج ہمارے قومی وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا قومی کردار جذبے، ہمت، محنت اور کر دکھانے سے عبارت ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خود پاکستان کا قیام ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو علامہ اقبال نے سوئی ہوئی ملت میں جگایا، جس کی مدد سے قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم الشان قیادت نے ایک خواب کو تعبیر میں بدل دیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تعمیر پاکستان کے اس مشن کو ہماری قومی سیاسی قیادت نے جمہوری اور آئینی جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھایا۔ حقائق سے نظریں نہیں چرائیں، ہوش مندی سے سچائی کا سامنا کیا اور شدید مالی، انتظامی اور ہر طرح کے مسائل کا صبر، استقامت اور دانش مندی سے مقابلہ کیا۔ قوم کو متفقہ آئین دے کر ایک قومی ایجنڈے پر اکٹھا کیا، ادارے بنائے، معیشت، زراعت، صنعت کو ترقی دی، قوم کو روزگار دیا اور پاکستان کو دنیا میں قابل عزت بنایا۔
यही वो कौम है जिसने वसाइल न होने के बावजूद वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की क़यादत में जौहरी प्रोग्राम शुरू किया और वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम तरगीबात और दबाव के बावजूद इसे मुकम्मल करके कौमी दफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इस कौम ने होलनाक जल्जलों और सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला किया, हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती रही। इसी कौम के बेटों और बेटियों ने खेलों के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। इसी महीने में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान अरशद नदीम और नूह भट्ट समेत कौम के बेटों और बेटियों ने कामयाबियां हासिल करके पाकिस्तान को दुनिया में सर बुलंद किया। इसी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त फाश दी। ये हमारे कौमी अज़्म, इरादे और एतमाद की चंद मिसालें हैं जो इस अमर का सबूत है कि हमारी कौम हर मकसद को हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेकिन आज कौम को मायूसी के एक और बहरान का सामना है। इंतशार और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। कौम को तकसीम दर तकसीम और कौमी वहादत को पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ पिछली हुकूमत के पैदा करदा मुआशी बहरान ने इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। आज माली मोहताजी जैसे हमारी कौमी शनाख्त बन गई है, जिसका हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा भी ना होगा। 11 अप्रैल 2022 से आज तक बतौर वजीर आजम मेरा सबसे तल्ख तजुर्बा यही है। प्यारे अहले वतन, मैंने आपको तारीख के आईने में तस्वीर के दोनों रुख दिखा दिए हैं। एक मायूसी का है और दूसरा उम्मीद का, लेकिन रास्ता सिर्फ एक है, यकीन मोहकम और अमल पहम का, अज़्म हिम्मत और उम्मीद का। हम गौर करें तो हर बहरान में मौके छुपे होते हैं, बस देखने को चश्म और करने को अज़्म चाहिए। इस जद्दोजहद की इब्तिदा हम कर चुके हैं। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुख्तसर वक्त में मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए दिन रात मेहनत की, जो अब भी जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया होने से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक हुकूमत ने 48 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा छोड़ा है। इस खसारे को कम करने के लिए हमें दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेना पड़ा है। क्या यह है हकीकी आजादी? साबिक हुकूमत ने सिर्फ 3.25 साल में 20,000 अरब रुपए का तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया, जिसके सूद की अदायगी भी मुहाल हो चुकी है। क्या यह है हकीकी आजादी? 2017-18 में हम पाकिस्तान को गंदम में खुद कफील छोड़कर गए थे। आज पिछली हुकूमत की
मुजरमाना गफलत के नतीजे में हम अरबों डॉलर की लागत से गंदम बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। क्या ये है हकीकी आजादी? पिछली हुकूमत ने करप्शन, संगीन और मुजरमाना गफलत करते हुए एलएनजी का कोई भी तवील मुद्दती मुआहदा नहीं किया, जो उस वक्त इंतहाई सस्ते दामों मिल रही थी। आज लोड शेडिंग और महंगी बिजली की बुनियादी वजह यही है। क्या यह है हकीकी आजादी? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि पिछली हुकूमत ने किसके इशारे पर सी पैक के मंसूबों को बंद करके पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया? क्या यह है हकीकी आजादी? अजीज अहले वतन, हमारी माशी पॉलिसियों के नतीजे में गैर जरूरी इंपोर्ट्स को सख्ती से कंट्रोल किया गया है, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तानी रुपया दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। सादगी को अपनाते हुए हम खुददार कौमों की तरह अपने वसाइल पर इन्हिसार करेंगे। अरबों डॉलर खर्च करके हम बाहर से तेल और गैस मंगवाकर महंगी बिजली पैदा करते हैं। इसकी जगह हमने हजारों मेगावाट सोलर एनर्जी के मंसूबे लगाने का फैसला किया है। इससे एक तरफ अरबों डॉलर की बचत होगी, क्योंकि महंगा तेल और गैस नहीं मंगवानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ आवाम को सस्ती बिजली भी मुहैया होगी। इंशाअल्लाह हमने तहैया किया है कि पाकिस्तान को माशी खुद इन्हिसारी के रास्ते पर लेके जाएंगे, क्योंकि माशी आजादी के बगैर आजादी का तसव्वुर नामुमकिन है। इसीलिए मैंने ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मिसाके मईशत की पेशकश की थी, और बतौर वजीर आजम आज एक मरतबा फिर खलूस दिल से इसका इयादा कर रहा हूं, इसकी पेशकश कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, वक्त का तकाजा है कि अब हम बहसियत कौम दुरुस्त सिमत में अपने सफर को जारी रखें और कौमी मफाद को जाती अना, जिद और हठधर्मी की भेंट न चढ़ने दें। हमें याद रखना चाहिए कि हकीकी सियासी क़यादत इलेक्शन पे नहीं, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पे नजर रखती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा सामना बेरहम हकायक से है, जिनका मुकाबला हम कौमी इत्तेफाक राय, पॉलिसियों के तसलसल, माशी और सियासी इस्तेहकाम से ही कर सकते हैं। सबसे बढ़कर हमें खुददारी और खुद एतमादी के उसी जज्बे को जिंदा करना है जिसने पाकिस्तान बनाया था, जो तहरीके पाकिस्तान की असल रूह है। इसी जज्बे से तामीर पाकिस्तान होगी। 14 अगस्त एक यौम है, आएं इस यौम पर हम एक कौम बन जाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद।